older students also. Welcome back to another super amazing, super cool, super interesting, super informative biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. Yes, so we are learning the chapter reproduction in plants, right? So we have covered so many topics. Yes, up to now we have covered so many topics. So just a quick recap. If we see, we learned microsporogenesis, we learned development of male gametophyte already. Megasporogenesis, we have learned it already. Development of female gametophyte, learned already. Developed or mature gametophyte, female gametophyte structure, learned already. Structure of anatropous ovule, learned already. Right? Apart from this, what else we had learned? What else we had learned? This was yesterday's class, right? What else we had learned in the previous class? Pollination we had learned. Yes. Pollinating agents we had learned. Then types of pollination we had learned. Right? Types of pollination we had learned this also. Right? Self-pollination, cross-pollination. For self we had learned auto and getono. For cross we had learned xenogamy. Remember? Yes. So that was pollination topic. Then we had learned double fertilization also. We had learned that the very, very important character of angiosperms. Angiosperms means the plant which gives you flower and fruit. Flower and fruit. Okay, that type of plant are called as angiosperms. ठीक है? Angiosperms. The plants which have flower and fruits, which give us flower and fruits. That is angiosperm plants. ठीक है? So we learned that double fertilization is a very, very important character of angiosperms. Right? So double fertilization we had seen. 2 times fertilization takes place. Male gamete fuses with the egg, and the second one, male gamete fuses with the polar nuclei. All of you are following me what I am saying? Click on yes if you are following what I am saying. Perfect. So in today's class, we are going to learn outbreeding devices, pollen pistil interaction. Okay. If time is there, we will see some more topics. But first we will make sure we are learning outbreeding devices and pollen pistil interaction. Okay. Nishant, is this your first class? Nod your head if it is your first class. No, and do this if this is not your first class. Can you see me? If yes, do this. If no, do this. I can see you. First class? Okay, perfect. ठीक है. So you need to, whoever is attending the class for the first time, in the end remind me, I will share the link of the YouTube. Okay. So you can watch the other classes, whatever classes you have missed. Okay. So now coming to outbreeding devices and okay, we can learn here only outbreeding devices. Outbreeding devices. Okay. Now, always I have told you, whenever we learn any subject, I apply this in biology because I teach biology, but you can actually use this in all the subjects. Whenever आपको एक बड़ा सा term मिलता है, आप try करो उसको तोड़ने का, try to break it down. ठीक है? तो आप क्या करते हो? Outbreeding devices को break down करो. Out मतलब बाहर होता है यानी बाहर, right? दूसरा out is बाहर, in is अपना.
ठीक है, इन इज अपना इनसाइड एंड आउट इज दूसरे का बाहर. ब्रीडिंग, ब्रीडिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? फर्टिलाइजेशन ना. ब्रीडिंग इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन. एंड डिवाइसेस मतलब हम कुछ टेक्निक यूज करेंगे. वी आर, यस बेंसी करेक्ट, वी आर गोइंग टू यूज सम टेक्निक. किसके लिए? टू परफॉर्म आउट ब्रीडिंग. टू परफॉर्म आउट ब्रीडिंग. तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है. हम पढ़ रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक समझना है. ठीक है, वो क्या है? इन ब्रीडिंग. वो क्या है? इन ब्रीडिंग. हमें सीखना है आउट ब्रीडिंग, लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नो व्हाट इज इन ब्रीडिंग. ठीक है, इन ब्रीडिंग को समझने के लिए बस एक सिंपल तरीका है. इन ब्रीडिंग को आप रिलेट कर लो किससे? सेल्फ पॉलिनेशन से. इन ब्रीडिंग यू कैन रिलेट इट टू सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, इन ब्रीडिंग यू कैन रिलेट इट टू सेल्फ पॉलिनेशन. मैंने कल समझाया था सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स सेम प्लांट में पॉलिनेशन. सेम प्लांट में, है ना, जीन सेम होना चाहिए, राइट? द जीन शुड बी सेम. द जीन शुड बी सेम, है ना. द जीन शुड बी सेम. हो सकता है कि फ्लावर दो डिफरेंट फ्लावर में हो रहे हो सकता है पॉलिनेशन दो डिफरेंट फ्लावर में हो रहे हो, बट स्टिल हो तो रहा है सेम प्लांट में. जीन तो सेम है ना उनका. तो वो आपका क्या आता है, किसमें आता है? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना. हमने सीखा ये कल. तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इन ब्रीडिंग. एक ही प्लांट अपना ही गैमेट फ्यूज करा रहा है, राइट? खुद का मेल गैमेट वो फ्यूज करा रहा है खुद के फीमेल गैमेट से, राइट? It is not getting male gamete, it is not getting pollen grain from other plant. Is it doing it? No, right? तो अगर ऐसा कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या होगा? एक ही जैसे कैरेक्टर आएंगे ना, हमेशा हमेशा एक जैसे कैरेक्टर आएंगे, सेम कैरेक्टर सेम कैरेक्टर. उससे क्या होगा? वैरायटी नहीं आएगा. उससे क्या होगा? वैरायटी नहीं आएगा. ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कोई इंडियन क्रिकेटर है, कोई एग्जाम्पल आपको याद है? इंडियन क्रिकेटर ने शादी की है किसी और कंट्री के क्रिकेटर से. पता है कुछ? शोएब अख्तर, कुछ नहीं पता? सानिया मिर्जा, पता है उसने किससे शादी की है? तो ऑल दीज पीपल व्हिच आई जस्ट स्पोक नाउ, they got married to very different kind of people. मतलब उनका वैरायटी बहुत ही अलग है. तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बेबी होंगे उनमें वैरायटी ज्यादा होगा. ठीक है, इसलिए हमारा जो इंडियन कल्चर है वो क्या सपोर्ट करता है? आपके अगर सीनियर्स कजन्स वगैरह की शादी हुई होगी तो वो हमेशा क्या देखते हैं कि कोई दूसरे फैमिली से शादी होनी चाहिए. हमारी सेम फैमिली में शादी होती है क्या? सेम फैमिली में शादी होती है? नहीं होती है. दूसरे किसी फैमिली से शादी होती है. क्यों? क्योंकि तब हमें वैरायटी मिलता है. ठीक है, सिमिलरली अगर प्लांट में, सेम प्लांट में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेम प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है? इन ब्रीडिंग. सेम प्लांट में इन ब्रीडिंग. इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट डिप्रेशन में चला जाता है. इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट गोज इन डिप्रेशन. और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, हमने सीखा इन ब्रीडिंग क्या होता है. इन ब्रीडिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन. व्हेन द प्लांट इज गिविंग pollen grain to its own stigma, then it is what? Self pollination, and that is inbreeding. ठीक है, अब इनब्रीडिंग होने की वजह से हमने सीखा कि वैरायटी नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा.
अगर ह्यूमन बीइंग्स में देखोगे तो जो बेबी होगा उसका इंटेलिजेंस थोड़ा कम हो सकता है ना, सेम सेम कैरेक्टर डेवलप होंगे, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर नहीं आएगा। ये सब रीजंस है आपके इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब भी होगा इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा, वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, inbreeding depression, the condition in which the plant does inbreeding due to multiple inbreeding, due to multiple inbreeding, the plant variability goes low, the plant production goes low। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और वेरिएबिलिटी सब कम हो जाता है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्लांट डिप्रेशन में चला गया है, और उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, सबको समझ आया व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्यों होता है, बहुत बार इनब्रीडिंग करने से, ड्यू टू मल्टीपल इनब्रीडिंग, बहुत बार इनब्रीडिंग करने से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएबिलिटी कम, प्रोडक्टिविटी कम। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है, प्लांट क्या होगा, मर जाएगा, बिकॉज प्लांट के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खराब इन्वायरमेंट को फाइट कर सके। द प्लांट विल नॉट बी इवॉल्व टू फाइट विद एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। जब बुरा कंडीशन आएगा इन्वायरमेंट का, प्लांट विल नॉट बी एबल टू इवॉल्व, क्योंकि उसमें वेरिएशन तो आया ही नहीं। ठीक है, तो इस सब की वजह से प्लांट क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं, वी हैव टू गो फॉर व्हाट, आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग मैं बोल सकती हूँ ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन था सेम प्लांट, तो आउटब्रीडिंग क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। आउटब्रीडिंग क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका एक मतलब है कि सेम प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, राइट। इन द सेम प्लांट यू शुड नॉट हैव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्रिस इज वेयरिंग द मास्क, यस क्रिस, ओके। सेम प्लांट में you should not have fertilization. When you avoid this, that is what, outbreeding devices. So what do you mean by outbreeding devices? The processes by which the plants avoid self-pollination. The processes by which the plants avoid self-pollination. The plants overcome inbreeding depression. The plants overcome inbreeding depression. प्लांट को इनब्रीडिंग डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट करेगा एंड दैट इज योर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सबको समझ आया? Everyone understood what I said? We have all the students now with us. All of you understood? Click on yes if you understood. Perfect. Yes. Okay, I'll wait so that you don't become lazy. Click on yes, everyone. I want to see whether you know how to click on yes or not. Yes, so I have 37 yes now. Others, Dipali has answered in the chat box. Shubham, outbreeding depression. No. Outbreeding depression we don't get. We get inbreeding depression. Okay. Yes, okay. Almost all of you have answered now. All right. So shall we move forward? Yes? Yeah. So I am going to introduce you to a ma'am here, Shalini ma'am. Everyone click on participants. Click on participants. Can you see Shalini HS, co-host? Yeah. So if you have any doubt, let's say I am teaching you and I am not able to clear your doubt, you can ask doubts from ma'am. Okay? Whatever doubts you have, you can
keep asking Shalini ma'am. If there are so many doubts, then she can filter some and she will send it to me. I will answer them. Okay? Yes. So for responding for the classes, you need to message me, Neha Chaurasia, co-host. And for asking doubts, if doubts are more, please ask Shalini ma'am. Okay? Can we do that? All of you followed me, right? Yes. Perfect. तो हम सीख रहे थे आउटग्रेडिंग डिवाइसेस, बट मैंने क्या बोला, इसको समझने के लिए पहले हमें ये सीखना है कि व्हाई आउटग्रेडिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड. तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड. तो आपको पता है ना क्यों? क्या? प्रिवेंट करने के लिए. टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, प्लांट्स हैव टू गो फॉर आउटब्रीडिंग. ठीक है. नाउ वी विल लर्न आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. What are the techniques? What are the techniques by which plants prevent self pollination? ऐसे कौन कौन से टेक्निक है जिससे प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है? So we are going to learn that. ठीक है. तो पहला टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के फर्स्ट टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल, anyone knows? Before I write anything, anyone knows? किसी को आइडिया है? Awesome, Priyanka. Yes, it is self incompatibility. So she is saying self incompatibility. Incompatibility. Anyone else has any more ideas? Yes, Shruti. Dichogamy. Perfect. Dichogamy. Dichogamy. ठीक है. Yes. Any other questions? You can ask Shalini ma'am. She is answering. I can see. Yes, Munshi. Perfect. Hercogamy. Hercogamy. Yes. Unisexuality. Perfect, Shruti. Unisexuality. Anything else? Anything else? One more. If you have gone through the book, you will tell me. One more is there. Tell me. Heteromorphism. Yeah, we can have this. Heteromorphism. Prepotency. Yes, Shruti. Prepotency. Anything else is there? Anything else is there? Anyone remembers that? No? Okay. So you have self-incompatibility, you have unisexuality, you have where is it? You have dichogamy, you have hercogamy, then you have unisexuality, you have prepotency. Okay. Now we are going to learn these techniques one by one. We are going to learn these techniques one by one. Okay. These are the ways by which plant can prevent self-pollination. Okay. These are the ways. These are the techniques. Techniques for outbreeding. Techniques for outbreeding. Okay. Now, first one is self-incompatibility. We are going to learn this. Okay. First one, self-incompatibility. Self-incompatibility. Now, what do you mean by incompatibility? Incompatibility. Incompatibility. Now, are you compatible with me now? Do you have any kind of barrier in between you and me that, okay, I cannot ask ma'am, I feel shy? Do you have that? If you have that, you will say that you are incompatible with me. If you don't have that, what will you say? No, I am very much compatible with ma'am. I have the comfort level with ma'am. Yes, Binsi. Perfect. Okay. So incompatibility means
not comfortable, not compatible, not compatible. Self, the term is what? Self incompatibility. The term is self incompatibility, means there is something related to self. Okay, there is something related to self. I have a plant. I have a plant. Okay. I have flowers. Let's say this is male flower. This is female flower. Male flower will give pollen grain and female flower will have stigma. है ना? We learned it. What happens in self-pollination? Same plant का pollen grain गिरेगा किस पे? Stigma पे. Same plant का pollen grain will pollinate the same plant का stigma. है ना? Plant को इसको prevent करना है. इसको prevent करना है या नहीं? इसको prevent करना है. तो पहला हम तरीका सीख रहे हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. मतलब ये खुद के पॉलन ग्रेन को क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट कंपैटिबल विद मी, आई वांट सम अदर प्लांट्स पॉलन ग्रेन. ठीक है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि प्लांट खुद के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देगा. ठीक है. ये अगर स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है, सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन आ गया, तो स्टिग्मा क्या करेगा? इसको रिजेक्ट कर देगा. स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा. रिजेक्ट्स द सेल्फ पॉलन ग्रेन. सेल्फ पॉलन ग्रेन. रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ? रिजेक्ट का मतलब हमें पता है ना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. यस सृष्टि, परफेक्ट. पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. मेल गैमेट ट्रैवल करता है, एम्ब्रियो सैक की तरफ जाता है. ये सारा चीज नहीं होगा. ठीक है. क्या मतलब है स्टिग्मा रिजेक्ट्स द पॉलन ग्रेन? स्टिग्मा विल नॉट अलाउ, स्टिग्मा विल नॉट अलाउ, स्टिग्मा विल नॉट अलाउ germination of pollen grain or germination of pollen tube. ठीक है. germination of pollen tube और germination of pollen grain. ठीक है. मतलब ये pollen grain को pollen tube का further growth नहीं करने देगा, वो रिजेक्ट कर देगा. नहीं भाई, आप जाओ, मुझे दूसरे प्लांट के pollen grains चाहिए, मुझे खुद के प्लांट का pollen grain नहीं चाहिए. ठीक है. सबको समझ आया व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? समझ आया क्या? व्हाट इज इट? द प्लांट विल रिजेक्ट इट्स ओन pollen grain. The plant will not allow the germination. Yes, Munshi, perfect. Yes, the plant will not allow, the stigma will not allow the germination of pollen grain of if the pollen grain is of the same plant. अगर pollen grain same plant का है तो स्टिग्मा बोलेगी नहीं, मेरे को तुम नहीं चाहिए, दूसरे pollen grains आने चाहिए. ठीक है. दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो आप देखो, अगर ये pollen grain इस पे जर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्या प्रिवेंट हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हुआ नहीं हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हुआ या नहीं हुआ? खुद के प्लांट का pollen grain स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब इट हैज प्रिवेंटेड सेल्फ पॉलिनेशन और नॉट. क्लिक ऑन यस इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. यस. ठीक है. दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है. यस प्रियंका, प्रियंका हैड टोल्ड दिस पॉइंट फर्स्ट. यस. अभी दूसरा क्या सीखेंगे हम? डाइकोगैमी. दूसरा क्या है? डाइकोगैमी. सबको ये कलर दिख रहा है क्या? दिस कलर इज विजिबल. थोड़ा सा ओल्ड कलर है. इज दिस कलर विजिबल? या ओके, ठीक है. डाइकोगैमी पेंसिल टाइप दिख रहा है, राइट? या डाइकोगैमी. डाइकोगैमी क्या होता है? अगर सेम प्लांट है आपका, उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों है, इनको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है, तो ये क्या करते हैं पता है? मान लो
ये मेल वाला प्लांट, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ये क्या करेंगे, दोनों का जो डेवलपमेंट का टाइम है, द मेल फ्लावर डेवलपमेंट एंड द फीमेल फ्लावर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट टाइम को वो चेंज कर देंगे। जब मेल डेवलप होगा तो फीमेल फ्लावर डेवलप नहीं होगा। तो अगर मेल डेवलप है, हम पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि पहले क्या डेवलप हो गया, पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया। जब पॉलन ग्रेन डेवलप पहले हो गया, पॉलन ग्रेन डेवलप्स फर्स्ट, पॉलन ग्रेन डेवलप्स फर्स्ट। तो पॉलन ग्रेन जब डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, व्हाट विल इट डू, पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, इट हैज टू डू व्हाट, पॉलिनेशन। यस और नो, हाँ या नहीं, ओके, बी रिस्पॉन्सिव, यस, परफेक्ट, राइट। अब इसने आना है इस फ्लावर पे, फीमेल फ्लावर पे, ये आएगा, देखेगा कि स्टिग्मा तो मैच्योर है ही नहीं, फीमेल फ्लावर तो मैच्योर हुआ ही नहीं, तो क्या ये पॉलिनेट कर पाएगा सेम प्लांट को, यस और नो। अगर स्टिग्मा डेवलप ही नहीं है, अगर फीमेल फ्लावर डेवलप ही नहीं हुआ, तो क्या ये कर पाएगा पॉलिनेशन सेम प्लांट में, नहीं ना, यस, yes Shrishti, anther and stigma they develop at different time, perfect, yes, to prevent self pollination, है ना, yes निशांत। तो pollen grain develop करता है पहले और stigma matures later। तो क्या वह बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है कि दोनों को मैच्योर सेम टाइम पे होना चाहिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो स्टिग्मा और एंथर दोनों को ही एक टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन हो पाएगा। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमें तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना ही नहीं, तो क्या है, या तो पहले पॉलन ग्रेन डेवलप होगा या फिर स्टिग्मा होगा, बट दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, ठीक है, दे डेवलप एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब पहले आपका, पहले क्या डेवलप हुआ, एंड्रीशियम। एंड्रीशियम क्या है, सबको याद है क्या, व्हाट इज, यस यस, आई हैव गॉट द आंसर्स आल्सो, श्रुति, श्रुतिका एंड मृणाली। एंड्रीशियम ग्रुप ऑफ स्टैमेंस है ना, ग्रुप ऑफ स्टैमेंस। तो पहले अगर आपका एंड्रीशियम डेवलप होगा, आप इस कंडीशन को क्या बोलोगे, प्रोटो प्रोटैंड्री। देखिए, प्रोटो से रिलेटेड होगा आपका पहला, प्रोटो पहले, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन, वो सब बहुत पहले डेवलप हुए ना, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोटो, उनके लिए प्रिमिटिव, ओल्ड। सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रोटो यूज किया। एंड्री मतलब रिलेटेड टू एंड्रीशियम, पहले क्या डेवलप हुआ, प्रोटो एंड्री, पहले क्या डेवलप हुआ, एंड्रीशियम। इस कंडीशन को प्रोटैंड्री बोलते हैं, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन हम देखें क्या, बहुत इजी है दूसरा तो समझना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि गाइनीशियम पहले डेवलप हो गया, यस श्रुति, पहले गाइनीशियम डेवलप हो गया और बाद में एंड्रीशियम डेवलप होगा। तो अगर पहले गाइनीशियम डेवलप हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनीशियम तो पता है ना सबको, गाइनीशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, ग्रुप ऑफ कार्पेल, इट इज ग्रुप ऑफ कार्पेल, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटो तो कॉमन है, प्रोटो कॉमन है, सिंस ये फीमेल पार्ट है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी, है ना, प्रोटोगाइनी। सबको समझ आया, व्हाट इज डाइकोगामी, मेल एंड द फीमेल पार्ट in the same plant develops at different time. If male plant develops first, protoandry. If the female develops first, protogyne. सबको समझ आया? Can I see some yes, no? Yes. चलो बढ़िया, हमने सीख लिया डाइकोगैमी भी, दूसरा टेक्निक डन। अब तीसरा सीखेंगे हम हर्कोगैमी। तीसरा क्या, हर्कोगैमी।
हर्कोगैमी। ओके, तो हर्कोगैमी में क्या होता है पता है? मान लो देयर इज अ प्लांट, है ना, उसमें क्या हो गया है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, एक ही फ्लावर में स्टैमेन भी है और पिस्टिल भी है। ठीक है, यस मुंशी, एकदम सब लोग पढ़ के आए हो ना आज, एकदम वीआईपी हो, वीआईपी ऑफ द क्लास। श्रुति, मुंशी, सबके सब पढ़कर आए हैं। प्रियंका, वेरी गुड। तेजू, यस। सो व्हाट इज इट? ये कंडीशन आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल भी होगा और क्या होगा, फीमेल भी होगा। मेल पार्ट क्या है, मेल पार्ट आपका स्टैमेन है और फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल है ना। एक ही, यस बिंसी, करेक्ट, बोथ, रहमानी आल्सो गॉट इट, परफेक्ट, यस। So male and female both structures will be present in the same flower. वैसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो अभी हमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है ना। पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे नहीं गिरने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अब अच्छे से थोड़ा समझो। मान लो ये सेम फ्लावर में ये वाला आपका मेल पार्ट है, सेम ही फ्लावर में ये वाला पार्ट आपका फीमेल पार्ट। ये सिंबल मैं यूज करती हूँ, आई होप अब आप सीख गए हो, राइट। मैं बार बार ये सिंबल यूज करती हूँ मेल और फीमेल के लिए, है ना। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन आएगा मेल पार्ट से, वो ट्राई करेगा इसके स्टिग्मा पे जाने का, है ना, पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो हम क्या करेंगे, हाँ प्रियंका, हम, यस, प्रियंका इज राइट, प्रियंका इज सेइंग मैम, इसको हम मोनासियस भी बोल सकते हैं ना। यस प्रियंका, बोल सकते हैं मोनासियस भी। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन चाहेगा कि स्टिग्मा के पास आए, बट प्लांट क्या करता है, प्लांट को प्रिवेंट करना है फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या करेंगे, एक बैरियर बना देंगे। क्या बना देंगे, एक बैरियर बना होगा, मैकेनिकल बैरियर, जिससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन यहाँ तक तो आएगा लेकिन इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो देयर इज अ मैकेनिकल बैरियर, देयर इज अ मैकेनिकल बैरियर बिटवीन स्टैमेन एंड पिस्टिल। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर, जिससे क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, इससे क्या होगा, पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो गया, हमारा काम तो हो गया। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो। ठीक है, दैट इज हर्कोगैमी। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे नहीं गिरने देना है। कैसे करेंगे वो, एक मैकेनिकल बैरियर प्लांट प्रोड्यूस कर लेगा, जिससे कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा और ये प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज हर्कोगैमी। सबको समझ आया, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज हर्कोगैमी? यस, ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आ रहा है सबको, परफेक्ट। ठीक है, ये हर्कोगैमी हो गया। और अंग्रेजी में कैसे बोलोगे आप, व्हाट इज हर्कोगैमी इन इंग्लिश? इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट डेवलप्स अ मैकेनिकल बैरियर टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन by preventing the meeting of pollen grain and stigma। ठीक है, मैं कभी भी बुक का डेफिनेशन नहीं बोल पाऊंगी, आई एम रियली वेरी बैड एट इट। ठीक है, आई हैव प्रॉब्लम विथ लर्निंग, memorizing things, rectification I can't do, so every time I say the definition will be different but always the meaning will be same। ठीक है, yes, okay, so that is that हर्कोगैमी। okay, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है
यू विल गेट मार्क्स, आपको कोई नहीं रोक सकता मार्क्स लेने से, ठीक है, बिकॉज यू विल राइट द सेम थिंग, है ना। अभी हमने और क्या सीखना था, हर्कोगैमी हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी। मान लो ये प्लांट है, तब से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को मान, yeah, so we need to consider that there is a plant, इसमें कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैसे फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बनाएंगे। कैसे फ्लावर को बनाएंगे, यूनिसेक्सुअल। अभी यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ आ रहा होगा ना, मतलब हम फ्लावर पे क्या करेंगे, फ्लावर पे क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल, एक ही जेंडर होगा, एक ही जेंडर होगा, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ठीक है। ये कभी भी एक फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल को नहीं रखेंगे, दोनों मतलब स्टैमेन और पिस्टिल को नहीं रखेंगे, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इससे हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिए, इससे हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, हियर इज माय क्वेश्चन, कैन वी प्रिवेंट ऑटोगैमी, कैन वी प्रिवेंट ऑटोगैमी by doing this, yes or no, answer in yes or no, yes. Now next question is, can we prevent geitonogamy, answer in yes or no, can we prevent geitonogamy, think, yes Srishti, correct. Can we prevent geitonogamy, think Priyanka, geitonogamy, what is it, geitonogamy is this, no, in the same plant the flower pollen grain will fall on the stigma of the female flower, this is geitonogamy or not, this is geitonogamy or not, think, can plant prevent geitonogamy, now you think, can plant prevent geitonogamy, autogamy it can prevent, because autogamy is what, autogamy takes place in, autogamy किस फ्लावर में होता है, autogamy बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, तो हमने तो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना दिया, तो ऑटोगैमी होगा ही नहीं। लेकिन जिटोनोगैमी सोचो आप, क्या हम जिटोनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं इससे, क्योंकि सेम प्लांट में आपके पास मेल भी है, आपके पास फीमेल भी है, और हमें पता है जिटोनोगैमी सेम प्लांट में होता है बट डिफरेंट फ्लावर होते हैं। ओके, फाइनली यू ऑल हैव गॉट इट राइट। क्या होगा, जिटोनोगैमी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, हम अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाए, हम प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी, बट हम जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये आपका चौथा था ना, हाँ, फोर्थ वन, यूनिसेक्सुअलिटी। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बनाएं, यस परफेक्ट मुंशी, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएं तो वी कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी, बट we can't prevent जिटोनोगैमी, है ना, we can't prevent जिटोनोगैमी, ओके। सबको समझ आया क्या, everyone followed what I said, yes, perfect, click on yes if you are following what I am saying, बढ़िया बढ़िया, yes, so that is यूनिसेक्सुअलिटी। अब हम क्या सीखेंगे, अब हमारा फिफ्थ वन क्या होगा, प्रीपोटेंसी, राइट, प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी, व्हाट इज प्रीपोटेंसी, समझ आ रहा है कुछ, प्री पहले, पोटेंसी, प्रीपोटेंसी। मान लो आपका ये प्लांट है, यहाँ पे
सेम प्लांट मैंने लिया फिर से। ये क्या करेगा ये प्लांट? मान लो यहाँ पे कोई और भी प्लांट है, ठीक है, इसका भी पॉलिन ग्रेन है। ओके, हाँ बिफोर, यस रहमानी करेक्ट। इस प्लांट का पॉलिन ग्रेन है और लेट्स से यहाँ पे भी एक पॉलिन ग्रेन है, इस प्लांट का भी पॉलिन ग्रेन है। इसको हम 1 मान लेते हैं, पॉलिन ग्रेन 1। इसको हम पॉलिन ग्रेन 2 मान लेते हैं, ठीक है। पॉलिन ग्रेन 1 एंड पॉलिन ग्रेन 2, ठीक है। अब ये पॉलिन ग्रेन यहाँ आएगा, इसके पास स्टिग्मा है मान लो, इसके पास है ना। ये पॉलिन ग्रेन यहाँ आके चाहेगा जर्मिनेट करना, है ना। दूसरा क्या है कि किसी भी इंसेक्ट के हेल्प से, एयर की हेल्प से, किसी भी हेल्प से क्या हुआ कि पॉलिन ग्रेन यहाँ आ गया। दूसरे प्लांट का व्हाट डिड आई डू, पॉलिन ग्रेन 2, ठीक है। दूसरे प्लांट का पॉलिन ग्रेन यहाँ आ गया। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ कंपटीशन होगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंपटीशन, कि कौन सा पॉलिन ग्रेन पहले जर्मिनेट करेगा। अब आप सोचो हमें करना क्या है, हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है कि नहीं। हमें पॉलिन ग्रेन, सेम प्लांट का पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करना चाहिए। वी नीड टू प्रिवेंट दिस और नॉट, यस और नो, यस यस। तो क्या होगा, प्रीपोटेंसी का मतलब दूसरा पॉलिन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आया तो वो पहले जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ये पॉलिन ग्रेन नहीं जर्मिनेट करेगा, दूसरा पॉलिन ग्रेन फटाफट जल्दी से जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। यस यस अक्षता, पॉलिन ग्रेन 2 will germinate. So what is prepotency? Pollen grain of other flowers. What is it? Pollen grain of other flowers, right? Pollen grains of other flowers germinate. Pollen grains of other flowers germinate rapidly. Germinate rapidly, ठीक है। Pollen grains of other flowers germinate rapidly on the stigma. So if you understand this, which means this, that pollen grain 2 will germinate faster than pollen grain 1. Rapid germination, yes yes, perfect तेजू। हाँ एकदम सही। So that is prepotency. इससे हमने प्रिवेंट कर दिया ये, है ना। ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसका स्लो है, स्लो है, ये बहुत स्लो है, खुद का है फिर भी बहुत स्लो है। तो क्या होगा, जो हमेशा ऐसे बोलते हैं ना हम, अगर आप जल्दी पढ़ोगे आपके पास ज्यादा टाइम होगा रिवाइज करने का, है ना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे आप उतना अच्छा करोगे। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमेशा, जैसे मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं कल क्या पढ़ाऊंगी, हमेशा आप ट्राई करो कि आप वो टॉपिक थोड़ा पढ़ के आओ। अगर आप वैसा करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, जल्दी समझ आएगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको धीरे समझ आएगा। तो विनर कौन होगा, जो थोड़ा सा पढ़कर आए थे, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने की वजह से वो कितना फास्ट समझ रहे हैं, है ना। यस या परफेक्ट, दैट इज प्रीपोटेंसी। अभी एक और पढ़ेंगे हम, एक मैं ऐड करती हूँ, किसी ने ये नहीं बोला था। व्हाट इज दैट, यू नो, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, हाँ, I think some of you had said ना, heteromorphic you had said. It is similar to heteromorphy. हाँ, some of you had said heteromorphic. हाँ श्रुति, yes yes. तो सिक्स्थ टेक्निक, हमारा सिक्स्थ टेक्निक क्या है, हेटेरोमॉर्फी या फिर हेटेरोस्टाइली। हेटेरो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। What's the meaning of hetero? सेम या डिफरेंट, मैं हिंट देती हूँ, सेम या डिफरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरो? परफेक्ट, यस। प्रियंका हैज आंसर्ड, रहमानी हैज आंसर्ड, तेजू हैज आंसर्ड, गजानन हैज आंसर्ड। So what is it? It is different. हेटेरो का मतलब
डिफरेंट, यस बिंसी, दीक्षा। और होमो का मतलब सेम, है ना, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रो स्टाइली, स्टाइली इज रिलेटेड टू स्टाइल, मतलब क्या होने वाला है यहाँ, कुछ तो डिफरेंट होने वाला है स्टाइल के साथ। सबको पता है स्टाइल क्या है, सबको पता है स्टाइल क्या है, फीमेल पार्ट पिस्टल, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दैट, पिस्टल सभी को याद है, इसके पार्ट्स 3 पढ़े थे हमने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना, यस। सो हेट्रोस्टाइली मतलब स्टाइल का लेंथ डिफरेंट होगा, द लेंथ ऑफ द स्टाइल विल बी डिफरेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टाइल विल बी डिफरेंट। कैसा डिफरेंट होना चाहिए, मान लो आपके जो फ्लावर है, ये वाला हो गया आपका एंथर, ठीक है, ये फ्लावर है, ये आपका पार्ट हो गया क्या, एंथर का पार्ट हो गया, ये आपका एंथर है, मेल पार्ट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइलोब एंथर होंगे, ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा। मैं क्या करूंगी, फीमेल वाला जो पार्ट है ना, मैं उसको बहुत बड़ा कर दूंगी, लेंथ उसको इंक्रीज कर दूंगी, आई एम गोना इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टाइल। यहाँ पे आपका ओवरी होगा, यहाँ से स्टाइल निकलेगा, मैं बहुत लंबा कर दूंगी इसको। यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, यहाँ पे क्या आ गया, स्टिग्मा आ गया। अब देखो ये पॉलन ग्रेन को कहाँ जाना है, पूरा ऑल द वे इट हैज टू क्रॉस एंड देन रीच टू द स्टिग्मा, है ना। तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन पहुंच पाएगा क्या, yes Shruti, they are placed at different level. Pollen grain, will it be able to reach stigma, answer in yes or no, quick, no, right। तो क्या होगा, हमें क्या प्रिवेंट करना था, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट लेंथ पे प्लेस्ड है, दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेंथ, है ना, तो स्टाइल का लेंथ डिफरेंट हो गया, उसको हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। All of you understood how many techniques we learned for outbreeding devices? कितने टेक्निक सीखा हमने, 6। हेट्रोस्टाइलिंग, स्टाइल का लेंथ डिफरेंट हो गया, पॉलन ग्रेन पहुंच नहीं पाएगा। प्रीपोटेंसी में क्या सीखा हमने, कंपटीशन है, सेम पॉलन ग्रेन स्लो जर्मिनेट करेगा और दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन फास्ट जर्मिनेट करेगा, है ना। नहीं गजानन, हर्कोगैमी में हमने मैकेनिकल बैरियर को यूज किया था, ठीक है, अभी आपका ठीक है, कौन मान, शुभम वांट्स मी टू रिपीट दिस, सी प्रीपोटेंसी का मतलब पहले पोटेंशियल आना, पहले पोटेंशियल आना किस चीज का, पहले पोटेंशियल आना पॉलन जर्मिनेशन का। तो ये जो पोटेंशियल है पहले किस में आ रहे हैं, दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन से आ रहे हैं, इट इज फॉर डिफरेंट पॉलन ग्रेन, इट इज नॉट हैपनिंग इन द सेम पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो खुद का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, दूसरे का पॉलन ग्रेन एकदम जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट जर्मिनेट कर रहा है, इस यही है आपका प्रीपोटेंसी, ठीक है। पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ऑन द स्टिग्मा, ओके शुभम, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी में हमने सीखा कि अगर फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल में कर दे तो हम ऑटोगैमी प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन हम जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये सारे टेक्निक्स की जरूरत है ना, जितने भी दूसरे दूसरे टेक्निक है हमें सारे टेक्निक्स की जरूरत है ना। हर्कोगैमी, व्हाट इज हर्कोगैमी, सी गजानन, हर्कोगैमी अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपके पास पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का सरफेस सेम फ्लावर में होगा, तो हम क्या करते हैं, प्लांट क्या, हम कुछ नहीं करते हैं, प्लांट क्या करता है, एक मैकेनिकल बैरियर बना लेता है, ठीक है, यस, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल बैरियर
वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन को यहाँ तक नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, दैट इज योर हर्कोगैमी। ओके, डाइकोगैमी में क्या होता है कि वो लोग डेवलप ही नहीं होंगे सेम टाइम पे, दे विल डेवलप एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। अगर पहले मेल डेवलप हुआ तो प्रोटो एंड्री, फीमेल हुआ तो प्रोटोगाइनी। ठीक है, दैट इज डाइकोगैमी। देन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अगर खुद का पॉलन ग्रेन जाएगा तो प्लांट जर्मिनेट करने ही नहीं देगा, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ आई वांट अ क्विक response from you all. Did you all understand? Yes? Click on yes if you have understood. Sejal, yes. Shruti, yes. Priyanka, Shrishti. ठीक है. Okay. So if you have any doubts now also, please ask Shalini ma'am. She will help you out. Okay. If you have any doubt, Shubham, please ask ma'am. Shalini ma'am, she will help you. Okay. If anyone has any doubt, you can ask ma'am related to what I taught just now, because I'm going to move to the next topic. ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे हेट्रोस्टाइली ऐड नहीं किया था, we will add हेट्रोस्टाइली। ठीक है, हेट्रोस्टाइली। तो हमने देखो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। What do you mean by outbreeding, है ना। Then why do we require outbreeding? Third question, explain different techniques of outbreeding और explain outbreeding devices। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आ सकते हैं explain outbreeding devices, है ना। और उसको ब्रेक करके एक एक करके वो पूछ सकते हैं कि हर्कोगैमी क्या होता है, प्रीपोटेंसी क्या होता है, हेट्रोस्टाइली क्या होता है। दे कैन ब्रेक द कॉन्सेप्ट एंड दे कैन आस्क। समझ में आया? तो हमने आज ये सीखा। अब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है? कैन वी गो अहेड? कैन वी लर्न दिस टॉपिक? क्लिक ऑन यस। ठीक है, चलो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम अब दूसरा टॉपिक सीख रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अभी तक हम क्या सीख रहे थे? आउटब्रीडिंग, है ना, डिवाइसेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये बहुत ही इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, नथिंग इज देयर इन दिस। नाम बता रहे हैं आपको ये क्या है। व्हाट इज इट? पॉलन, पॉलन से रिलेटेड है। पिस्टिल, पिस्टिल से रिलेटेड है। इंटरैक्शन मतलब दोनों के बीच इंटरैक्शन होगा, है ना। हाँ, यस रहमानी, इन हेट्रोस्टाइली the style becomes very long, length of style becomes long. Yes, so pollen pistil interaction, when pollination takes place, what is this pollen pistil interaction? When pollination takes place, on the stigma pollen grain comes, है ना। Now the pollen grain has to germinate, right? Pollen grain has to germinate and make what? Pollen tube, right? This pollen tube will consist of male gametes, remember, and this will take it to the embryo sac. Yes, I hope you are following what I am saying, है ना। ठीक है, embryo sac में कहाँ जाएगा ये? सिनर्जिड के पास जाएगा, रिमेम्बर, एक सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाता है ना। तो व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन? हम सीख रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यहां से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना मतलब पॉलिनेशन का होना, देन इसका जर्मिनेट होना पॉलन ट्यूब में, देन ये पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड तक पहुंचाना, इस मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब के थ्रू सिनर्जिड तक पहुंचाना। यहां से लेके यहां तक जो प्रोसेस है वो क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या है ये? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। सबको समझ आया व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन? नो मींस इट इज नॉट डबल फर्टिलाइजेशन, it is interaction between pollen grain and stigma. It is interaction between pollen grain and stigma.
इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? pollen grain falling on the stigma, germinating and forming the pollen tube, then male gamete reaching to the synergids. यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो आपका pollen pistil interaction है. Binsi, after this double fertilization will take place. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले, पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी प्रोसेस है वो क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन है ना? आफ्टर पॉलिनेशन and before double fertilization, whatever interactions take place between pollen and pistil, that is pollen pistil interaction. सबको समझ आया? Between pollination and double fertilization, the interactions which take place between pollen and stigma, that is pollen pistil interaction. तो ये include क्या करता है? What all things it includes? Pollen grain germination into pollen tube, then bringing the male gametes into the synergid. All these together is pollen pistil interaction. All of you got it? If you have got it, click on yes. Yes, perfect. ठीक है, अब हमारे को ये सीखना है कि आखिर स्टिग्मा के पास ऐसा क्या है, what stigma has that ये pollen grain को germinate करने में help करती है. What does it have? So it has some ions, ठीक है, it has some sucrose, sugar, ठीक है, it has some ion like potassium ion, ठीक है, it has some boron. So all these are present where? On the surface of stigma. तो जब भी पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन को सुक्रोज मिलता है, पोटेशियम मिलता है, बोरोन मिलता है. मेनली आपका सुक्रोज हेल्प करता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में, एंड ये सब भी हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में. ठीक है, पॉलन ट्यूब का जब ग्रोथ होगा, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज, पोटेशियम एंड बोरोन. सबको समझ आया? Everyone understood what I said just now? This is important कि ऐसा क्या है स्टिग्मा में that it helps in the germination of pollen grain. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? सुक्रोज, पोटेशियम, बोरोन. ठीक है, yes. Definition of what, Munshi? Definition of what? Pollen pistil interaction. Do you want me to make you write the definition of pollen pistil interaction? ठीक है. So what is the definition of pollen pistil interaction? The interaction which takes place between pollen grain and the stigma. The interaction which takes place between pollen grain and the stigma after pollination and before fertilization. After pollination and before fertilization. It includes the development of pollen tube, right? It includes the development of pollen tube and taking the male gametes to the synergids. Got it? Yes? Okay, Munshi? Yeah, okay. All right. So, let me just do a quick polling and check this. You are understanding or not? I'm just checking this feedback. Okay. There are two things you can see on the screen. You feel comfortable speaking to the teacher. Do I explain concepts well? Whatever you feel like, you go for it. Those who do not feel comfortable with me, please reply in the chat box so that I can help you out. Okay. I feel there are so many students who are very comfortable with me, and I would love to be very comfortable with you, right? So if you feel that you are shy in nature, I want to talk to ma'am, but I don't know how ma'am is going to react,
You can text me personally. It is good. No one can see your messages. Only I can see your messages. Okay? Yes? So did you all understand? So I can see that everyone is comfortable. Yes. Perfect. Awesome. All right. Cool then. So did you all enjoy the class? Yes? Understood all the concepts? Yeah? Perfect. I have launched a different poll now. I'll end this. I will just have this poll. Feedback. Yes. I see. When I see this now, I feel so happy. Yes. Priyanka, yes. Comfortable? Sakshi? Perfect. Thank you so much. Yes. Awesome. You're welcome, Shruti. ठीक है then? Thank you. Yes. Take care. Bye bye. Tomorrow's class, what we are going to learn? We will be learning development of embryo. Okay, how after fertilization, we saw no double fertilization was giving us zygote and primary endosperm nucleus. Do you remember that? So after that, what happens? How you get seed, right? How the seed development takes place. All these we are going to learn. Okay. The homework is, you know, right? Please recall, and you all know the link of the notes, right? Yes. So in the notes link, some assignments will be uploaded, right? You can see the assignments and do that assignment. In the notes link, it will be there. हाँ कल तो संडे है यस गजानन you have the time. ज़्यादा assignment नहीं होगा, you know, right? I don't give you so much of homework. I want you to learn things here only. I just want you to become independent of the books, right? आपको सब कुछ यहाँ याद होना चाहिए brain में. Slowly it will happen. Yes? Recall करो. Sunday है तो book नहीं खोलना, ठीक है? Don't open the book. Don't open the book tomorrow. Just recall. ठीक है? सब कुछ recall करो क्या क्या पढ़ाई हुआ अभी तक बायो में. और जहाँ जहाँ भूल जाओगे उसको आप ओपन करके देखना कि मैं ये भूल गया वो भूल गया ऐसे करके. ठीक है? चलो टेक केयर. बाय बाय. सी यू. बाय रहमानी. बाय रितिका. बाय.